بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں استاد غلام رسول۔ گوٹ فارمنگ کے لیے مکمل معلومات یہ آج کا موضوع ہے، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ جو ہے یہ کاروبار ایک بہت بڑا سمندر جیسا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں تمام ایک کیئر آ جائے۔ تو میں نے بہت کوشش کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ ضرور کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ پورے فارمنگ کے ماہر ہو جائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ نے اپنے دیکھ لی تو۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ بکریاں رکھتے ہیں تو آپ جو خوراک ان کی ہے 50% خشک چارہ اور 50% سبز چارہ سیزن کا، یہ آپ ان کا بندوبست کریں۔ نمبر 2، چاہے بکریاں موٹی ہوں چاہے درمیانی جسامت میں ہوں، ان کو ڈیلی کی بنیاد پر ایک مرتبہ اور بہتر شام کو ہے ان کو اضافی خوراک بھی کھلائی جائے، اور اضافی خوراک وہ گندم کی صورت میں دی جائے، چاہے تو آپ گندم ثابت کھلا لیں چاہے تو دلیا کرا لیں۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے، جو جانور زیادہ کمزور ہو اس کو آپ نے 2 ٹائم اچھی خاصی اضافی خوراک دینی ہے۔ نمبر 3، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں شیڈ صاف ستھرا اور گرمی سردی کے مطابق ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا مکمل علاج کیا جائے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کی ڈیورمنگ کروانی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈیورمنگ پیٹ کے کیڑوں کے لیے ہوتی ہے، ہر 3 ماہ کے بعد کرنی ہے، اور بیرونی ڈیورمنگ ایک کہتے ہیں، وہ جو ہے جلد میں انجیکشن بھی ہوتا ہے لگایا جاتا ہے، اور سپرے وغیرہ بھی ہوتا ہے، یہ کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ جناب جب بکری آپ کی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی خوراک بہتر کر دینی ہے، اور آخری جو 2 ہفتے ہیں ان میں آپ نے اچھی خوراک کھلانی ہے۔ جو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ گندم کا دلیا دیں، اور اس میں آپ ڈالڈا گھی استعمال کریں، اور چینی اور زیرہ بھی ساتھ میں، آدھا چمچ زیرہ اور 15-20 گرام ڈالڈا گھی شام کے وقت روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ استعمال کریں۔ جب بکری کی ڈلیوری ہو جائے پھر آپ اس کو 7 دن تک، 1 ہفتے تک آپ نے زیرہ، چینی اور ڈالڈا گھی، یہ آپ نے جو ہے روٹی تازی میں جتنا وہ ہضم کر لے اتنی خوراک آپ نے صبح شام 7 دن تک دینی ہے۔ اس کے بعد جو چاہیں آپ اضافی خوراک دیں۔ اور پیارے دوستو، اس کے علاوہ جو ویکسینیشن ہم کہتے ہیں، ویکسینیں ہوتی ہیں 3 قسم کی، ایک PPR کی ہوتی ہے، اور نمبر 2 دوسری کلورونمونیا، اور تیسری پیتا سوزش کی، یہ آپ نے ضروری کروانی ہے۔ باقی آپ کا رہ گیا دوسرے مسائل۔ اگر بکری کے پیٹ میں درد ہو، آپ نے سرسوں کا تیل دینا ہے اور دہی میں مکس کر کے دینا ہے، اور کم از کم فل بکری کو 100 گرام دینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کا درد رک جائے گا۔ اگر اس کے پیٹ میں ہوا بھر گئی ہے تو پھر آپ جو ہے سرسوں کا تیل بھی دے سکتے ہیں دہی میں یا دودھ میں مکس کر کے۔ اس کے علاوہ بہتر ہے کہ جو ایل ہوتا ہے گاڑی سے نکلا ہوا، وہ آپ 10 سے 15 cc جو ہے وہ بکری کو پلا دیں، افارہ اتر جائے گا۔ ہاں، بعض اوقات بہت سخت افارہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اپنے ہاں سوئی رکھیں، موٹیاں سوئیاں رکھیں اپنے ہاں، جو بڑے جانور گائے بھینس کو ریپ لگانے کے لیے ہوتی ہیں، موٹے سائز کی ہوتی ہیں اور لمبی بھی ہوتی ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 انچ، وہ لیں۔ پھر وہ آپ جو ہے پیٹ میں لگا دیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ جہاں پر پسلیاں ختم ہوتی ہیں نا جی، اس کے پیچھے جو ہے درمیان والی ہڈی جو ریڑھ والی ہوتی ہے، اس سے 1 انچ 1.5 انچ وقفہ ہو، اور پسلیوں سے بھی 1 سے 1.5 انچ وقفہ ہو، وہاں آپ بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے 1 سوئی لگا دیں۔ پھر جتنی بھی ہوا ہوگی وہ 1 جو ہے سیکنڈوں میں خالی ہو جائے گی، اور جانور آپ کا ضیاء ہونے سے بچ جائے گا، اور پھر آپ اس جانور کو جو ہے
कम अज़ कम 3 दिन तक रोज़ाना सरसों का तेल जो है 30 से 35 ग्राम आपने जो है दही दूध किसी चीज़ में मिक्स करके रोज़ाना की बुनियाद पर देना है, ताकि आइंदा फारा ना हो। नंबर आगे हो गया जी, मोशन वगैरह बकरियों को लग जाते हैं। अगर मोशन लग जाएं तो उनके लिए 3 मेडिसन मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 आप सल्फाडेमोडिन ले लें। नंबर 2 जो है नो स्कोर है, एक नो सल्फा है, वो अपने इनमें से कोई भी एक अपने पास रखें। उसके बाद जब आपका कोई भी मसला हो सिल्फ और वो दवाई दीजिए ताकि मोशन जो है वो रुक जाए। इसके अलावा छोटा पेशाब बाज़ औक़ात जानवरों का है वो बंद हो जाता है और वो भी बकरियां उससे भी एक्सपायर हो जाती हैं। तो उसको आप इस तरह करना है कि आपने एक इंजेक्शन होता है लासिक्स, वो जो लासिक्स इंजेक्शन है ये इंसानों वाले स्टोर से मिलता है और बहुत ही सस्ता सा है। फुल साइज जो बकरी हो उसको 3 इंजेक्शन लगाने हैं, 2-2 सीसी के होते हैं, डेढ़ या 2 सीसी के। वो 3 इंजेक्शन आपने लगाने हैं और अगर कम उसका कद काठ हो तो 2 लगाने हैं और उससे कम हो ज़्यादा कम हो तो फिर आप एक भी लगा सकते हैं। उससे आपका छोटा पेशाब बकरी का बिल्कुल छूट जाएगा। फिर आपने उसकी जो गर्मी वगैरह है उसके लिए बेहतर है आप सरसों का तेल दें या और कुछ ऐसी चीज़ दें जिससे उसका आइंदा ये मसला वगैरह ना बने। इसके अलावा जनाब बकरियों का ज़्यादा मसला आता है उनका जल्द जो है जल्द पर ख़ारिश होना या मले फोड़े निकल जाना। ख़ारिश का तो मैं समझता हूँ वो ही जो आप बैरूनी डिवर्मिंग करेंगे, स्प्रे करेंगे तो उससे आपका इलाज हो जाता है, लेकिन ज़ख़म हो जाते हैं। अगर छोटा मोटा ज़ख़म हो तो ऊपर आप जो है पायोडीन लगा सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों के हिसाब से जो है हैवानों वाले स्टोर से फुहारे मिलते हैं एंटीबायोटिक, वो ज़ख़मों के लिए वो लगाएं, छूट जाएगा। अगर को बहुत ज़्यादा गहराई में ज़ख़म हो गया है तो फिर आप जो है मैं आपको एक इंजेक्शन बताता हूँ, वो अपने पास रखें। वो है PPS इंजेक्शन का नाम है, वो इम्पोर्टेड है और वो आप बकरी को जो है जितना ही गहरा ज़ख़म हो आप उसको जी लगाएंगे। उसका 8 सीसी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कद काठ वाली बकरी है तो उसको 10 सीसी तक भी लगा सकते हैं, लेकिन गोश्त में लगाना है और फिर आप जो है 48 घंटे तक वो रिपीट नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा इंजेक्शन है जितना भी आपका मसला हुआ एक इंजेक्शन से हल हो जाएगा। ये मैं आपको सरसरी हिसाब से जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे तो छोटा मोटा मसाइल हो तो हल्की क्वालिटी की मेडिसन भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये आप अपने पास रखें तो इससे आपका मसला 100% हल हो जाएगा बहुत तेज़ी से। इसके अलावा हैवाने में जो है यकीनन जैसा कि आप देखते हैं कि हैवाने में अंगारी हम बोलते हैं, साड़ू बोलते हैं, वो पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो सोजिश और पक्का हो जाता है और बाज़ औक़ात थनों में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात पानी, बाज़ औक़ात पीप वगैरह। तो उसका भी यही इलाज है, आपने लासिक्स इंजेक्शन जो है बकरी को लगाना है और 10 सीसी लगाना है। इंशाअल्लाह ताला एक ही इंजेक्शन से आपका काम बन जाएगा और बकरी की जो सोजिश है जो भी मसला है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा आपके मसले बकाया बच जाते हैं। आपको बकरी का रिपीटर हो जाना ये एक काफ़ी मसला बनता है और फार्मर को खसारा आता है। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने बकरी को ब्रीड तब करवाना है जब हीट एंड पर हो जाए। 18-20 घंटों के बाद ब्रीड करवाना है और ब्रीडर आपका वो हो जो चेक शुदा हो कि उसका जो है बकरियां ठहर जाती हैं। बाज़ औक़ात बकरे होते हैं जिनका ऐसा वैसा मसला होता है और उनकी बकरियां ठहरती भी नहीं हैं। बाकी जनाब आपने बकरियों की लिए एक हज़मोदा फक्की रखनी है, जो मैं समझता हूँ आप मेरे चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर अपना कोई तजर्बा है तो वो भी सही है। वो आप पूरे साल तक रोज़ाना की बुनियाद पर आपने बकरियों को देनी है ताकि बकरियों का हाजमा दुरुस्त रहे और बकरियां जो है बिल्कुल बहुत ही यानी अच्छी तरह पानी भी पिएं और चरा भी करें।
बाकी जनाब आपने जो भूसा इस्तेमाल करना है उसको अच्छी तरह छानना लगाना है। छानने के बाद बेहतर तरीका ये है कि आधा भूसा हो और आधा सीज़न का सब्ज़ चारा हो, उसका कुतरा किया जाए और उनको जमा करके उनको अच्छी तरह मिक्स करके वो खिला दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ ये ख़ास मसाइल थे जो मैं समझता था। अगर आपने इन चीज़ों पर आपने मुकम्मल काबू पा लिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप कामयाब फार्मर हो जाएंगे। हाँ, एक बात बच गई है, छोटा जो बच्चा पैदा जब होता है तो उसको आपने पहले भी आपने एक आधे चम्मच से भी कम, तीसरा हिस्सा चम्मच का हो वो चीनी होनी चाहिए, उसमें आधा चम्मच पानी डालकर उसको घुला कर पहले बच्चे को वो देनी है। उसके बाद माँ का दूध जो है पेट भर के पिलाना है ताकि उसका पेट जो है खुल जाए। फिर आपका जब बकरा का पेट खुल जाता है फिर उसके मसले मसाइल कम हो जाते हैं, फिर उसकी सेहत दुरुस्त रहती है। इसके अलावा बच्चे को जो है जब 20-25 दिन के होते हैं तो फिर वो रेत मिट्टी खाना शुरू कर लेते हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, पेट बंद हो जाता है। तो आपने कभी भी अपने बकरी के बच्चों को रेत खाने से बचाना है। और जनाब अगर बकरी का दूसरा मसला ये बच गया है कि अगर वो जेर ना निकाले, अगर वो जेर जो डिलीवरी के बाद मवाद होता है तो उसमें आपने ये करना है कि जब बकरी आपकी डिलीवरी करे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इंतज़ार करना है कि वो जेर निकाल ले। अगर ना निकाले तो आपने डालडा घी लेना है और कम अज़ कम 100 ग्राम डालडा घी उसको गर्म करके ताज़ा कर लें। ताज़ा, गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, वो आपने बच्चे देने वाली जगह में बीच में डाल देना है ताकि वो अंदर में खुश्का बना पड़ा होता है और वो जेर जो है वो फंस जाती है बीच में। जब आप डालडा घी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला वो जेर निकाल लेगी। इसके अलावा बकरियों के इसी तरीके से जो भी मसाइल हैं उनका आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि आपने बकरियों की हर किस्म की देखभाल रखनी है। उनके पाँव के नाखून बढ़ जाएं तो वो आपने कटाई करवानी है। इसके अलावा बकरी का कोई भी आपके को लगता है कि इसका मसला है तो फिल फौर इलाज करना है। इसके अलावा एक डॉक्टर के साथ आपने राब्ते में रहना है और उससे ही आपने मशवरा लेना है जो आपका एतमाद वाला हो, और फिर आप इंशाअल्लाह ताला आप फार्मिंग में नाकामी से बच जाएंगे। और इसके अलावा आखिरी और अहम, आप फार्म जब खड़ा करना चाहते हैं बकरियों का तो मेरी ये आपसे बिल्कुल 100% आपको मशवरा है कि आप नस्ल वही रखें जो आपके एरियाज़ में चल रही है, किसी दूसरी जगह से ना लेकर आएँ। चूँकि हर बकरी जहाँ रहती है वहाँ की गर्मी सर्दी वो बर्दाश्त करती है। हम जब दूसरी जगह से ले आते हैं तो फिर उनके काफ़ी ज़्यादा मसाइल बनते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी नस्ल की शौक़ रखते हैं तो ब्रीडर उसी नस्ल का आप खड़ा कर सकते हैं। चूँकि एक होगा उसकी केयर भी आप आसानी से कर लेंगे तो फिर आपके बच्चे जो हैं कम अज़ कम 70 से 80% जो है वो ब्रीडर पर आएंगे। तो फिर आपकी नस्ल भी वही बन जाएगी और वो होगी भी उस मिट्टी की, उस जगह की पैदाशुदा, तो फिर वो गर्मी सर्दी भी चाह लेगी। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन ये चंद पेचीदा और ज़रूरी और अहम मसाइल थे जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं समझता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सा टाइम लगाया और सोचा और फिर मैंने वीडियो बनाई, और इसीलिए बनाई खालिस के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा तो यकीनन वो दुआ देंगे। और इस वीडियो के बदले में मैं आपसे सिर्फ दुआ गो हूँ, और मैं आपको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। और प्यारे दोस्तों, यकीनन काम कोई भी किया जाए, शौक़ हो और पूरी नज़र हो। जब मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, अगर आपने इन पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश भी नहीं आएगा। जब आएगा तो एक डॉक्टर से आपका रब्ता होगा तो वो आपको जब मशवरा देगा तो यकीनन आप भी मुतमईन होंगे और आपका काम भी बनता रहेगा।
جب آپ کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر چلتے ہیں یا سمجھ سوچ کے بغیر چلتے ہیں تو یقیناً پھر خدا نخواستہ نقصان آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کوئی بھی کام کریں تو یقیناً انسان کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، محنت 100% ہو، اور اس کے علاوہ پوری کیئر بھی 100% ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو جو ہے منافع بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے انسان کو اسی سے منافع دیتا ہے۔ اور بکریاں پالنا ویسے بھی بہت بڑا نیکی والا اور برکت والا کام ہے۔ تو پیارے دوستو، میرا اوپر نمبر چل رہا ہے، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ وائس میسیج کیا کریں، تو پھر میں آپ کو جب مجھے ٹائم ہوتا ہے تو میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا، اور اب میں اجازت چاہوں گا، اور بس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو خوش خرم رکھے اور سلامت رکھے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، اور اگلی ویڈیو تک اب میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔